Today we were discussing Mendeleev's classification of element. At the time when Mendeleev classified the elements, 63 elements were discovered. जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल फॉर्मुलेट की थी 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे. मेंडलीफ took 63 cards and wrote name of each element on them. After that, he mentioned the formulae of the oxides and hydrides of element formed. Mendeleev then sorted out the cards which had similar formulae of oxides and hydrides. He pinned them together and he observed that these elements were arranged in the increasing order of their atomic masses, and he also observed periodicity in the properties of the element. सुनना ध्यान से. मेंडलीफ ने जब ये टेबल फॉर्मुलेट की थी 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो उसने क्या किया, उसने 63 कार्ड्स लिए, हर एलिमेंट का नाम उस पर लिखा और हर कार्ड पर उस एलिमेंट के द्वारा बनाए जाने वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिखे. और ऐसे कार्ड जिसमें के फार्मूले ऑक्साइड और हाइड्राइड के एक से थे, सिमिलर थे, उनको उसने सॉर्ट आउट कर लिया और पिंड कर लिया. तो उसने एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑब्जर्व की. उसने देखा कि ये जो कार्ड्स हैं, they were arranged in the increasing order of their atomic masses. Moreover, he also observed periodicity. Periodicity का मतलब होता है repetition of element with similar property after a definite interval. यानी एक definite interval के बाद जो एलिमेंट आता है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं. इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी. On the basis of this observation, इस observation के basis पर Mendeleev formulated a law which is known as Mendeleev's periodic law. It states that physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. क्या कहता है? Physical and chemical properties of elements are क्या है? Periodic function of क्या है? Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. It means, इसका अर्थ ये है कि if the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, elements with similar properties are repeated after regular intervals. यदि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक मास के अरेंज किया जाए तो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक सी होती हैं वो एक इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस Mendeleev formulated a table in which the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses such that
elements with similar properties come in the same vertical column. मेंडलीफ ने क्या किया, इस बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के, इस तरह से कि एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होते हों, और सभी एलिमेंट जिनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आए. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, यू कैन सी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देन यू विल फाइंड दैट एलिमेंट्स विद आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम. एक ही वर्टिकल कॉलम में उनको रखा गया है. In Mendeleev's periodic table, there are 8 vertical columns, and these vertical columns are represented by numbers: first, second, third, fourth, 5, 6th, 7, and there was a group of 3 elements in the 8th group. So these vertical columns are called group. इन vertical columns को क्या कहते हैं? Groups कहते हैं. तो in all कितने हैं? There are how many vertical columns are there? 8 groups. 8 groups. And these groups have been further subdivided into subgroup A and subgroup B. You can see in the table. Like first group A, first group B, second group A, second group B, third group A, third group B, fourth group A, fourth group B, fifth group A, fifth group B, sixth group A, and sixth group B, and seventh group A and seventh group B, and finally we have सर किस ग्रुप तक विन कर लो? 8th group, which include group of 3 elements. Okay? In the Mendeleev's periodic table, there are horizontal rows, and these horizontal rows are called periods. And there are 6 periods in Mendeleev's periodic table. तो ग्रुप किसको कहते हैं? What are group in the Mendeleev's periodic table? The vertical columns in the Mendeleev's periodic table are called group. ये group है. And the horizontal rows in the Mendeleev's periodic table are called periods. How many groups are there in the Mendeleev's periodic table? There are 8 groups. Group 1 to 7 have been further subdivided in subgroup A, subgroup B. Yes. And 8th group includes group of 3 elements. There is a group of 3 elements in the 8th group. And the horizontal rows in the Mendeleev's periodic table are called periods. Periods. ये क्या कहलाते हैं? ये periods कहलाते हैं. और how many periods are there? 6 periods are there in Mendeleev's periodic table. Now, while arranging the elements in the increasing order of their atomic masses, Mendeleev left some gaps knowingly, deliberately. क्या किया उसने? While he was arranging the element in the increasing order of their atomic masses, he left some gaps knowingly, deliberately, and he claimed
that these gaps are for undiscovered element. In this way, ईबे को ज्वाइन कर लो. in this way, he predicted the existence of undiscovered element. मेंडलीफ ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के, तो जानबूझ करके उसने कुछ गैप छोड़ दिए और उसने क्लेम किया कि ये ग्रुप्स जो हैं, ये जो गैप्स हैं, सॉरी, ये गैप्स हैं वो उन एलिमेंट के लिए हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं. तो इन दिस वे ही प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एट दैट टाइम. उसने ये प्रेडिक्ट किया कि कुछ एलिमेंट अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं और वो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे. नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड the properties of those undiscovered elements, and when these elements were discovered, the observed properties of those elements were similar as predicted by Mendeleev. उसने ना केवल ये प्रेडिक्ट किया कि कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर होंगे, बट उसने उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट किया कि ये एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, अभी हमें नहीं मालूम है, उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी. और जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया, तो ये पाया गया कि लगभग उनकी प्रॉपर्टी वही थी जो मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट की थी. फॉर एग्जाम्पल, he left a gap below aluminium and he named this undiscovered element as Eka aluminium. He left a gap below boron and he called it Eka boron. And he left a gap below silicon and he called it Eka silicon. These elements were discovered and they were named gallium, scandium, and Eka silicon as germanium. तो मेंडलीफ ने कुछ गैप छोड़ दिए थे और उसने कहा कि ये गैप उन एलिमेंट्स के हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं. यानी उसने ये भविष्यवाणी की कि कुछ एलिमेंट अभी भी डिस्कवर होना बाकी है. और न केवल ये कि उसने ये प्रेडिक्ट किया कि कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज को भी उसने प्रेडिक्ट किया. और उसने उन एलिमेंट्स के नाम दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन. यानी उनकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन के अनुसार उनसे पहले ऊपर जो एलिमेंट था उसके आगे उन्होंने एक प्रीफिक्स लगाया ए का. जैसे इस गैप में जो यहाँ जगह थी उसका नाम था एका एल्यूमिनियम. बाद में ये एका एल्यूमिनियम गैलियम के नाम से जाना गया. Eka boron, which was discovered and named scandium, or Eka silicon, which later on discovered and was named germanium. यही नहीं, उसने उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट किया. जैसे उसका कहना था कि एका एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा उसका फॉर्मूला होगा, अगर हम एका एल्यूमिनियम को E से रिप्रेजेंट करें तो its formula of its oxide will be
E2O3, and formula of its chloride will be ECl3. नाउ जब ये गैलियम डिस्कवर हुआ तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला है Ga2O3 एंड इट्स क्लोराइड एज फॉर्मूला GaCl3. और भी प्रॉपर्टीज ने प्रेडिक्ट की थी उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो ये सारे जो पैरामीटर थे दे वर वेरी क्लोज टू द प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीफ. तो मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हेल्प टू प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एट दैट टाइम. उस समय जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनको उसने प्रेडिक्ट किया कि कुछ एलिमेंट अभी भी डिस्कवर होना बाकी. सिमिलरली व्हेन मेंडलीफ formulated periodic table, noble gases were not discovered. The noble gases are inert and they are present in extremely low concentration in atmosphere. Noble gases non-reactive होती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं और एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में पाई जाती हैं, इसलिए उनकी डिस्कवरी काफी बाद हुई थी. बट लेटर ऑन व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द existing arrangement of the element in Mendeleev's periodic table. So it is the great strength of Mendeleev's periodic table. बाद में जब ये नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई तो इनको एक सेपरेट ग्रुप में जीरो ग्रुप कह करके रख दिया गया और जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट था जो उस समय मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करने की आवश्यकता पड़ी. तो ये भी एक बड़ी स्ट्रेंथ थी किसकी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की. तो आपसे अगर कहा जाए कि बताइए 2 मेरिट्स ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल तो आप कह सकते हैं नंबर 1 द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हेल्प टू प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. नंबर 2 क्या कहेंगे आप कि when the noble gases were discovered they could be placed in the table without disturbing the existing arrangement of the elements. जब noble gases discover हो गई तो उनको एक अलग से ग्रुप में बिना existing arrangement में कोई परिवर्तन किए, बदलाव किए रखा जा सका. एक और स्ट्रेंथ ये है कि the periodicity in the property of the element was observed for the first time. यानी पीरियोडिसिटी जो थी यानी एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे थे, दोहराए जा रहे थे और इस तरह का पीरियोडिसिटी पहली बार देखी गई थी किसी टेबल में. सो इट वाज आल्सो अ मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज मेरिट्स Mendeleev's periodic table suffered from certain drawbacks. Mendeleev की periodic table में ये सब अच्छाइयाँ होने के बाद भी उसमें कुछ कमियाँ थी और आप उन कमियों को देख सकते हैं. If you observe Mendeleev's periodic table, then you will find that the hydrogen has been placed along with alkaline metal, lithium, sodium, potassium, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. अगर आप मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल देखो तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को मेटल के साथ में रखा गया है और जबकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट होती है. सो पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज नॉट जस्टिफाइड. इसलिए आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाई नहीं है. सेकंड अगर आप चीज देखें
के एलिमेंट्स एक्चुअली इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के क्रम में। बट इन सम प्लेसेस दिस अरेंजमेंट हैज बीन इग्नोर्ड। लेकिन कुछ जगह पर आप देखोगे कि ये अरेंजमेंट जो था यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास was not strictly followed। अगर आप देखें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में तो टेलुरियम और आयोडीन, टेलुरियम आयोडीन से पहले रखा गया है, बट एटॉमिक मास ऑफ द टेलुरियम इज ग्रेटर देन द एटॉमिक मास ऑफ द आयोडीन। आयोडीन पहले होना चाहिए, टेलुरियम बाद में होना चाहिए, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ द आयोडीन इज लेस देन द एटॉमिक मास ऑफ द टेलुरियम। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका कारण यह है कि अगर टेलुरियम को यहां रख दिया जाए तो क्या होगा, आयोडीन हैज बीन प्लेस्ड अलोंग विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व्हिच आर हैलोजेंस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोडीन रिजेंबल टू दीज हैलोजेंस। सो इफ टेलुरियम इज प्लेस्ड हियर, व्हाट वुड हैपन? Dissimilar elements would be placed in the same vertical column। अगर हम टेलुरियम को यहां रख दें और आयोडीन को यहां से हटा दें तो जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको तो अलग कर दिया गया है और जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है उनको साथ रख दिया जाएगा। तो यहां ये आप थोड़ा सा कह सकते हो कि ये दिस इज द डीमेरिट ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, दैट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हैज बीन इग्नोर्ड इन सम प्लेसेस। आपको देयर आर 4 सच एनोमलस पेयर इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ऐसे आपको 4 पेयर्स मिलेंगे, एनोमलस पेयर मिलेंगे जहां पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक मास का उसको इग्नोर कर दिया गया है, अनदेखा किया गया है। वन मोर, व्हेन मेंडलीव फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप्स वर नॉट डिस्कवर्ड। आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप एक ही एलिमेंट्स के वो एटम होते हैं जिनके एटॉमिक मास सेम होता है, डिफरेंट होते हैं, मगर उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। Now, in the Mendeleev periodic table, the existence of these isotopes create a problem. How would you arrange these isotope in the Mendeleev's periodic table? How will you place isotope in the Mendeleev's periodic table? Each element has several isotopes, so it will not be possible to accommodate all the isotopes in Mendeleev's periodic table, yeah, in any table. It is not possible to place isotope in different groups on the basis of their atomic masses. So the presence of the isotope poses a great challenge for the periodic classification of element। तो आइसोटोप जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये आइसोटोप कहाँ रखे जाएंगे? दे शुड बी प्लेस्ड इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और दे शुड बी प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। उनको एक ही ग्रुप में रखा जाए या उनके एटॉमिक मास